We have to quickly go across to Anu Diwan as well, who's of course standing by outside Gopal Krishna Gandhi's house. Anu, we understand the mood, of course, there is completely different. But at the same time, any kind of statement that we are expecting from that side, or perhaps from the Congress leadership, or anyone from the opposition? Tracy, definitely we are in a mood of expecting any statement after the result. We can expect such statement from the opposition from after declaration of the Vice President of India only. Since morning there is no such activity here. I can tell you we are at Mr. Gopal Krishna Gandhi's residence, but no such activities, no MPs or no the party workers or somebody is coming here, because the opposition is very much clear about the results. And after the declaration of the results only, we can say that the opposition will come in front and speak something about the relating to the whole proceedings and the vice president elections. Absolutely. All right, we'll come back to you again then for more updates from that. Parsa sir, if I could come to you and just talking about Gopal Krishna Gandhi, a personality. I mean, he's an intellect. He's of course served India in various positions, across the world. Apart from, of course, the Gandhi lineage, there's a lot that can be contributed to the man itself. Do you think it's just wrong timing or just facing the wrong candidate, at this point of time? Because his name did also come up, from the opposition side. At least that was the reports that were coming in. Apart from Meera Kumar, Gopal Krishna Gandhi was being considered there as well. Gopal Krishna Gandhi is a very cultured, sophisticated person. And I would not overemphasize his Gandhi lineage. He is a man in his own right with his own accomplishments. He has done books. Recently, he has translated the Tamil classic Tirukkural into English. So, he is a very cultured man, and I think he deserved to be the vice president. But we know the political situation, so things do not happen as they ought to. But in ideal conditions, perhaps he would have made a good vice president, and it's just bad luck that he happens to be on the wrong side of the fence. But it's not a reflection on him at all, because he is, I think, he's one man whom we, all of us, not just any one side, will respect him. And he's a liberal, and he believes very openly in the secular ideology, and but it doesn't mean that he would not engage with people of other ideologies or other belief systems. So that is the good thing about him. Yes, it is unfortunate that he is on the wrong side in this contest. Ram Kripalji, do you think so as well, that it was just unfortunate timing really for Ram Gopal Gandhi? Sorry, I'm getting his name wrong. Gopal Krishna Gandhi. Yes. बिल्कुल सही आपने कहा कि देखिए ये मैं फिर कह रहा हूँ कि ये कोई व्यक्तियों की या उसका नहीं है। मैं इसको पॉजिटिव संदर्भ में देखता हूँ कि लोग डेमोक्रेसी में दो पक्षों का आपस में, इसको चाहे आप कह लीजिए, मैं इसको परिस्पर्धा बोलता हूँ, प्रतिस्पर्धा नहीं बोलता हूँ। परिस्पर्धा ये भी होता है कि ठीक है, एक स्वस्थ परंपरा है, हम लड़ रहे हैं, तो इसमें हार और जीत ये बड़ी भारी चीज़ें नहीं होती हैं, सबको पता है। क्योंकि ये जो संख्या बल है वो क्लियर है, कोई इसमें ओपन तो होता नहीं है, अब सबको पता है सारी चीज़ें। तो इंडिया का पलड़ा भारी है, इंडिया का जीतेगा। लेकिन ये वो है कि बिल्कुल अगर आप यूँ कहें कि किसी तरह का उनके सम्मान में, और उनका जैसे एक लिबरल उनका हो रहा है, खुद नायडू जी भी बहुत ज़्यादा उनके बारे में, जैसा आपने ही कहा था, कि ये नहीं कह सकता कि कोई कट्टरपंथ विचार इस तरह का है। और बड़े ही, और अगर आप उनका पूरा उदय देखिएगा, वहाँ से कहाँ से शुरू किया था, वो जेपी मूवमेंट के दौर में एक दौर वहाँ से शुरुआत हुई थी उनकी, और तो खुले विचारों के हैं। और आज की तारीख में देखिए, आज जहाँ पे ये है, कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें हम लोग, ऐसा है कि कुछ एक समाज में हवा भी बड़ा क्रिएट किया जाता है कि ऐसा कुछ होता नहीं रियलिटी में। तो आप जाइए देखिए, तो नायडू जी भी अगर उनको कहें तो दोनों में से कोई भी ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यहाँ बहुत आइडियोलॉजी का झगड़ा नहीं है, उसको नकली रूप में खड़ा किया जाता है। लोकतंत्र है, बहुमत है, अल्पमत है, और एक जो अपोजिशन में होता है उसको लड़ना चाहिए, स्वाभाविक है। कभी आज आप हैं, कभी हम हैं, तो ये चलता रहता है। कभी जो यूपीए की चुनौतियाँ, जिन लोगों ने शुरू में कांग्रेस को चुनौतियाँ दी थी, जिन लोगों ने कांग्रेस को हटाया बार बार, चाहे वो पेजेंट्री मूवमेंट रहा हो, चाहे चौधरी चरण सिंह का
67 में सम्मिलित सरकारों का दौर रहा हो, आज वो सबके सब कांग्रेस के साथ हैं। तो ये ऐसा नहीं होता है कि अगर विचारधारा की लड़ाई होती तो काहे को ये सब। आप देखिए बंगाल में जहाँ कांग्रेस की लड़ाई थी किससे थी, सीपीएम से रही, उसके बाद टीएमसी से रही। बिहार में किसने किया, बिहार में पीजेंट्री मूवमेंट कर्पूरी ठाकुर से लेकर के ये, वहाँ तो एनडीए कभी गई नहीं। तो पूरे बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश किससे कांग्रेस की लड़ाई रही और किसने कांग्रेस को खत्म किया वहाँ, या मैं खत्म करना मतलब मेरा ये नहीं है खत्म, यानी सत्ताच्युत किसने किया, वो सारी पीजेंट्री पार्टीज हैं। आज वो विचारधारा की लड़ाई नहीं, आज वो एक उन्हीं सबके मतलब गांधी जो हैं उन सब के कैंडिडेट हैं और आज वो सब एक साथ हैं। तो देखिए ये यहाँ कहना कि बहुत बड़ा कोई ऐसे वैचारिक लड़ाई हो रही है, मैं इसको नहीं मानता हूँ। आज जो वैचारिक लड़ाई, जो जेपी मूवमेंट शुरू हुआ था कांग्रेस के खिलाफ, लोहिया ने शुरू किया था, गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, जेपी मूवमेंट, और ये सारी पीजेंट्री पार्टीज जेपी मूवमेंट से निकली हुई पार्टी हैं जो आज कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, सारी जगह पे है और उनका है। तो एक ये कहता हूँ कुल मिलाकर के दोनों का कद, दोनों में इस पद के लिए डिजर्व करते थे, ऐसा है। क्योंकि ये होता है कि एक ही बैठ सकता है, जिसके साथ संख्या बल है वो बैठ रहा है, जिसके साथ नहीं है। तो फिर भी कह रहा हूँ कि मैं तो डेमोक्रेसी की एक लाइन वही जो होती है, रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर माइनॉरिटी, उनको भी उतनी ही इज्जत दी जानी चाहिए जितनी वेंकैया नायडू जी को दी जाती है। ये लोकतंत्र का सम्मान है। उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, द मेजॉरिटी शुड हैव इट्स से वे बट द अपोजिशन शुड हैव इट्स से। जी, इट इज़ ऑल्सो। लेकिन रामकृपाल जी, इस चुनाव में हमें एक और दिलचस्प चीज़ देखने को मिली कि पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से फैसला किया। बीजू जनता दल और जनता दल यूनाइटेड ने राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार का समर्थन किया, इस बार वो विरोध कर रहे हैं, मतलब विपक्ष के साथ हैं। लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी एनडीए गठबंधन के भी 3-4 लोगों ने, जिनमें से 2 मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वो लोकसभा के सदस्य हैं, और मनोहर पर्रिकर जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं लेकिन उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने भी इस चुनाव में भाग लिया। ऐसे में कि जब एनडीए को कोई शंका नहीं है, कोई डर नहीं है, भारी संख्या है उनके साथ में, क्या इन लोगों का मतदान करना नैतिक है आपकी नज़र में? देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ कि कई बार राजनीति में ये नैतिकता अनैतिकता, फिर वही कहेंगे कि भाई जो अवैध नहीं है वो नैतिक है। सारा राजनीति में भी वो तो तमाम तरह के, कानूनन गलत नहीं है तो है। राजनीति देखिए हमेशा यही होती है कि, और ये हम लोग बड़ी उसकी आलोचना करते हैं, एकेडमिया करता रहता है, लेकिन अगर आप देखिए कि पॉलिटिकल पार्टीज के फैसले सड़क पे ज़्यादा होते हैं, अदालतों में कम होते हैं। अब भाई क्यों? सारी अदालतें सिर्फ कॉमन मैन के लिए हैं। आप लोग जो आरोप प्रत्यारोप है किसी अदालत में जाइए, आम आदमी तो बेचारा अदालत में जाता है न्याय मांगने के लिए कि भाई ये गलत है, आप वहाँ करते हैं, क्योंकि उसके पीछे न्याय उपाना कम होता है, उसके पीछे परसेप्शन बनाना, और हमेशा वोट की राजनीति है तो वो जनमत और बहुमत कैसे मिलता है। कोई भी लड़ाई इसके लिए नहीं लड़ी जाती है कि आप सही या गलत है। अग्निहोत्री साहब, आप कुछ कहना चाहें? ये कि भाई ऐसा है कि इसमें तो ये भी आप कह सकते हो कि वेंकैया नायडू जी ने भी अपने लिए वोट डाला, लेकिन ये तो संविधान में लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के लिए जो भी कैंडिडेट है वो किसी भी पार्टी का नहीं होगा, किसी भी किसी और लोकसभा राज्यसभा सदस्य नहीं होगा। लेकिन अगर वो है तो जिस समय उसका इलेक्शन हो जाएगा उस समय से उसकी जो मेंबरशिप है लोकसभा की, राज्यसभा की, वो टर्मिनेटेड समझी जाएगी। तो ये संविधान के हिसाब से ही काम हो रहा है। ये जब वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी और उस वक्त गिरधर गोमांग उड़ीसा के मुख्यमंत्री थे और वो 1 वोट से ही सरकार गिरी थी, तो कहा गया कि ये कांग्रेस की तरफ से अनैतिक काम हुआ और उस वक्त एनडीए बीजेपी ने इसकी काफ़ी आलोचना की थी। अभी जो सवाल मैंने रामकृपाल जी से किया उस पर आप क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ टेक्निकल लेवल पे जो है वो सही है कि वो वोट डाल सकते हैं। मोरालिटी के लेवल पे हाँ बिल्कुल क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि बीजेपी और एनडीए वाले इतने डरे हुए क्यों हैं कि वो अपने नंबर से कि डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि जब से बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी
बीजेपी का बागडोर संभालने लगे, उनका एक ही मकसद है, एक ही मंजिल है कि हर एक चुनाव जीतना है और ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जीतना है। और टेक्निकली योगी आदित्यनाथ और मनोहर पार्रिकर 6 महीने तक पार्लियामेंट के मेंबर रहेंगे। जब 6 महीने ख़त्म नहीं होंगे तब तक टेक्निकली वो वोट डाल सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि ये इंडियन क्रिकेट टीम के जैसा है, ज़्यादा रन बनाओ मैच जीतो, तो ज़्यादा वोट निकालो और चुनाव जीतो, ये इनका गोल है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि मोडालिटी वो इल्ज़ाम तो लगा सकते हैं, तनकीद कर सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि नंबर्स का है और टेक्निकलिटी का है, लीगल है या नहीं है, कानूनी है या गैर कानूनी है। राम कृपाल जी, यू वांट टू नहीं, रिस्पॉन्ड? मैं बिल्कुल सही कह रहे थे। देखिए हो क्या रहा है आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप लोग पूरे देश में देखे जा रहे होंगे सारे लोग, बात सिर्फ जीत की नहीं है, भारी अंतर से जीत। अगर एक वोट भी मेरा अपना है तो वो मैं उस अंतर को बड़ा करके दिखाऊंगा कि देखो मेरा एक्सेप्टेंस क्या है सब। तो ये मैसेज है, आप एक पॉलिटिकल मैसेज बहुत बड़ा जाता है, कितने वोटों से जीते कल। अच्छा, चूंकि इसमें बहुत इतना ज़्यादा तो होता नहीं है कि 2 करोड़ 4 करोड़ मतदाता हो, एक सीमित संख्या है, उसमें एक वोट का भी महत्व। और ये भी देखिएगा, अभी आपने खुद कहा थोड़ी देर पहले कि राष्ट्रपति के चुनावों में कई वोट अवैध हो गए और अभी कल जो प्रैक्टिस की गई उसमें भी हो गए, वही तो वो भी एक मार्जिन है। अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि आप ये देखिए कि ये सब वोट इसलिए बचाए जाते हैं कि डेमो देने के बाद भी वो डेमो सिर्फ एक पक्ष का था, उसमें 16 लोग गलतियां कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है आज नहीं किए होंगे। तो अगर मान लीजिए कि ऐसे 10 लोग गलती कर गए तो आपका तो 10 कम हो गया। और कहीं से सबको ये तो पता होता नहीं है, इसमें कोई व्हिप नहीं होता है, इसमें वो कल को आपके अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट आ जाए लोकसभा में, जैसे वाजपेयी जी एक वोट के चलते सरकार गिर गई थी। तो ये है कि भाई हम जोखिम क्यों लें जब हमारा है और कानूनी तौर पर हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कुर्बान भाई ने कहा कि नैतिक अनैतिक, देखिए नैतिक अनैतिक तब होता है आप एक कंटेस्ट में हैं, वहाँ गैर कानूनी नहीं है, तो हम उसका इस्तेमाल वहाँ करें, उसका फ़ायदा लोग उठाते ही हैं। All right. Just to take our viewers back to what's been happening at the moment, Mr. Venkaiah Naidu, the candidate of the ruling BJP-led National Democratic Alliance, is most likely, in most surety, in fact, expected to be the next Vice President. Members of Parliament, of course, still voting till 5 o'clock is, of course, when the voting takes place. At about 3 p.m., a little ahead of 3 p.m., we got an update, of course, that over 760 members of Parliament have cast their votes. So around 97% of the votes have been cast. 5 o'clock is, of course, when the voting, of course, ends, and then the counting will begin. And most probably by around 6:30 or so, we will have the name of the next Vice President of India. The results, of course, will be out then. NDA, remember, has a majority in Lok Sabha. It also, and most likely, it is going to have that candidate, Mr. M. Venkaiah Naidu, as the next Vice President. What we do have learned from our correspondents is also that the Prime Minister, Mr. Narendra Modi, will be also visiting M. Venkaiah Naidu in a short while, a little after 4 o'clock. And in fact, be probably speaking to party workers there, those who have gathered. And a lot of people, of course, have gathered outside Mr. Venkaiah Naidu's house, inside his residence, and he's, of course, entertaining all of them. He's known as the perfect host, definitely. So this is really going to be his day. And eventually, by later this evening, we'll see, of course, celebrations breaking out there as well. We've been getting a lot of reactions, of course, from different MPs who've, of course, cast their votes today. And we'll try and run them for you in just a short while. But some of them, and most of them, in fact, Parsa sir, if I could come to you, is that, you know, if anyone from the NDA could have been the person for this job, it is Mr. Venkaiah Naidu, because he is someone, as he himself claims, he's a non-party person. And he is someone who actually does enjoy, you know, a lot of camaraderie from other parties as well, including those from the opposition. Would you agree with that? Yes, but there's a little doubt left. Speculation is rife that whether Mr. Venkaiah Naidu was willing enough to become the Vice President, because he's relatively young. He's in his mid-60s. The political career is still open. The Vice President's position, though it's of a very high constitutional rank,
remains a ceremonial post. Does an active politician want to become a vice president? That is the question. And we can only speculate because Mr. Venkaiah Naidu will say, yes, I have accepted because the party wanted me to accept this role, and I am a very obedient party person, and I have been throughout my political career. So that open question is there whether Mr. Venkaiah, but there is no doubt that he is the right person because he brings with the necessary skills and the necessary experience. All right, Mr. Agnihotri, do you also think so that if the NDA had to choose a candidate, there were a few names, of course, that of course came across, some of them known names, some of them comparatively unknown, but nonetheless, you know, Mr. Venkaiah Naidu being chosen as that candidate was crucial in a sense that if at all, if there was anyone who could win that trust of the opposition, as you know, the chairman of Rajya Sabha, perhaps Venkaiah Naidu would have been is in fact that right choice. Yes, I completely agree, because apart from being a seasoned politician and being non-controversial, he also has a very good sense of humor, about which I think Mr. Arun Jaitley yesterday spoke when at the time of the release of the book, and his command over Hindi and English and Telugu and how he mixes up things, and there was a good cheer among the members present there. So this sense of humor again is very important, and sometimes it can develop a situation which otherwise is very difficult to handle, and therefore he has the necessary skills to run the house. That is what is important in this case. I think the BJP wanted to make a very strong point that the president and the vice president will be from its own ranks, and it had to choose a prominent person. It could not have chosen a backbencher to become the vice president. They chose one of their foremost leaders, just to show, look, we value the position of the vice president, and we also want to assert that the BJP's footprint is there. And I think it's a very legitimate and valid point to make, and the BJP has made that point by choosing Mr. Venkaiah Naidu. And Ramkepalji, you know, if you look at Venkaiah Naidu, he is somebody who is, of course, known to adapt to change very well. He was, in fact, the campaign manager of Advani, you know, at that time. And that kind of the BJP politics or that NDA politics to now being with a person like Narendra Modi and also being at the helm of how things are going. So as far as change goes, as far as adaptability goes, he is someone who's, of course, adept at it. बिल्कुल, देखिए पॉलिटिक्स में मैं एक ही चीज़ को कहता हूँ, राजनीति में सफलता की कुंजी एक ही है कि आप में एरोगेंस हो भी तो वो दिखे नहीं, सुन लेना और सह लेना, ये जिसमें ये क्वालिटी है। और ऐसा नहीं है कि पार्टियों में नहीं होते, हर पार्टी में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके बारे में आप किसी से पूछेंगे, उनकी आम राय होती है कि ही इज़ वेरी एकोमोडेटिव, लिबरल। वेंकैया जी उसमें से हैं। बीजेपी के सामने जो चीज़ आने वाली, देखिए यही पार्लियामेंट्री अफेयर्स का काम ऐसे ही लोगों को दिया जाता है एडवर्स स्थिति में कि जो थोड़ा सा सारा का फ्लोर मैनेजमेंट कर ले। वेंकैया जी पर भी कभी भरोसा किया जिस तरह से पार्टी ने, तो इसीलिए किया जाता है। और आप देखिए जितने क्रूशियल मामले रहे हैं सारे चीज़ों में, यूपीए से मिलना, सोनिया जी से मिलना, सारी चीज़ें वेंकैया जी और ये, तो जैसा कि अभी कह रहे थे कि जो टॉप लीडरशिप है, अपर हाउस है आपका, उसको इस तरह से कि किसी को भी ला देंगे, क्या है जी हम तो नहीं। मोदी जी ये भी जानते हैं कि संवैधानिक पदों की क्या प्रतिष्ठा है और उसको समझने वाले भी लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो, तो वहाँ पर एक मैसेज भी जाना चाहिए समाज में, जनता में, एकेडमिया में, हर लोगों को कि नहीं, वहाँ एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया गया। दूसरी बात यह है कि जो सबसे बड़ी नायडू जी की जो है कि सारी पार्टियों में उनको सम्मान देने वाले लोग हैं। जैसा एक बात हो रही थी कि सोमनाथ चटर्जी, आप देखिए कहीं भी कहाँ से कोई सोच सकता है, लेकिन सोमनाथ दा का एक ऐसा था कि वो एक बार अगर डांट दे तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, किसी पार्टी, किसी सांसद की, सब उनका सम्मान करते थे। तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लोकतंत्र में, यह है कि हम विचारधारा की अलग अलग बात होती है, मतभेद होते हैं, लेकिन एक मुखिया के प्रति सम्मान, और मुखिया जब इस काबिल होगा, उसका कद इतना बड़ा होगा, तभी सम्मान मिलता है।
तो ये जैसा कि कह रहे थे, मैं समझता हूँ कि वेंकैया नायडू सही चॉइस है एक तरह से, पार्टी की तरफ से अपनी जो भी था, या उस कद का कोई भी हो सकता है। अग्निहोत्री साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे जी? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था कि एक तरह से देखें आप उसको एक नज़रिए से, तो ये एनडीए ने एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करी है। क्योंकि अगर आपको याद होगा जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का चल रहा था तो सुषमा स्वराज जी का और भी लोगों का नाम आ रहा था, तो उस समय ये चर्चा आई थी कि बीजेपी एंड एनडीए इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू surrender one of their ministers or good people for purposes of the election, because they have a very limited pool of perhaps people who can really run the government. तो यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सेक्रीफाइस करी है in the interest of getting the right person of the right job. पारसा, अभी आप कह रहे थे कि इस बात का ख्याल रखा जाता है कि राष्ट्रपति अगर उत्तर का है तो उपराष्ट्रपति दक्षिण का हो, जैसा कि अब हो भी रहा है, और इसके अलावा ये कि दूसरे कंसिडरेशंस भी होते हैं, लेकिन साथ ही साथ चाहे जितना हम कहें कि ये लोग नॉन पॉलिटिकल ऑफिस है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने भी कहीं ना कहीं होते हैं। और जैसा रामकृपाल जी कह रहे थे कि 2019 का चुनाव भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, तो वैसे में इसके राजनीतिक मायने भी क्या निकल सकते हैं। और मेरे सामने प्रधानमंत्री का एक बयान है, वो उसमें कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेम आइडियोलॉजी विल मेक नेक्स्ट 5 years ट्रांसफॉर्मेटिव। तो इस ट्रांसफॉर्मेटिव का क्या मतलब है? मैं समझता हूँ कि ये समझना ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है बहुत ही जनरल और असर्टिव स्टेटमेंट्स करते हैं। अगर ज़्यादा एनालाइज करें तो लगेगा कि शायद उसमें उतना दम नहीं है कि जितना होना चाहिए। वो आप ये जिक्र करना भूल गए कि ये बताया कि जैसा 1942 और 47 में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, 2017 और 2022 में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये पैरेलल उन्होंने खींचा है। लेकिन मैं समझता हूँ उसमें कोई थोड़ा बहुत एग्जैजरेशन है और पॉलिटिशियंस का हक बनता है कि वो एग्जैजरेट करें। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन में, वो सिर्फ हाउस चला सकते हैं। हाँ, प्रेसिडेंट का रोल में अहमियत इसलिए है कि अगर किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में उनको रोल अदा करने में बहुत ज़रूरी होता है, सेंसिटिव रोल है, क्रूशल रोल है। मैं नहीं समझता कि इस वक्त बीजेपी वाले इस डर पे है कि उनको 2019 में मेजॉरिटी मिले या ना मिले। वो बहुत कॉन्फिडेंट है कि अगले 2 चुनाव में वो जीतेंगे ही। वो जीते या ना जीते वो अलग बात है, हर एक पॉलिटिशियन का एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि वो जीत कर आएंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पे सिर्फ इतना मान लेना चाहिए कि इस वक्त 70 साल के बाद पहली बार राइट विंग पार्टी अपने कैंडिडेट को प्रेसिडेंट बनाया है और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है, और ये बहुत ही कामयाब चीज़ है उनके लिए, क्योंकि इतने साल कांग्रेस वाले डोमिनेट करते रहे, लेफ्ट ऑफ सेंटर वाले डोमिनेट करते रहे। पहली बार राइट विंग पार्टी अपना आइडेंटिटी जमाया और सत्ते पर, क्योंकि ये लाजमी बात है कि उनके नंबर्स हैं, वो इलेक्शन जीत कर आए और डेमोक्रेटिक ज़रिए से राइट विंग। आप कोई किसी भी कंट्री में देखिए, अमेरिका में हो या ब्रिटेन में हो, दूसरे डेमोक्रेसीज में, डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के पार्टीज कभी न कभी वो सत्ता में आते रहते हैं और डोमिनेट करते रहते हैं। वो हिंदुस्तान में आने में थोड़ा देर हुआ है, 67 में जो है स्टेट्स में आए, सेंटर में आए तक 2014 पहली बार है कि एक अपोजिशन पार्टी अपने बलबूते पे सरकार बनाई है। और ये अपोजिशन पार्टी जो है राइट विंग कंजर्वेटिव पार्टी है। कुछ लोग बहस कर सकते हैं ये कंजर्वेटिव है या रिएक्शनरी, वो अलग बात है, लेकिन ये राइट विंग पार्टी ज़रूर है और उनका कामयाबी है। तो उनके पार्टी वाले प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने तो वो एक कामयाबी जो उनको सेलिब्रेट करना ही चाहिए। मैं समझता हूँ कि मोदी जी इस बात को जोर दे रहे हैं। आप इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? ये जो प्रधानमंत्री का बयान है कि नेक्स्ट 5 years विल बी ट्रांसफॉर्मेटिव, मैं उसी पर आ रहा था। जैसा भी कहा कि आपने, देखिए मोदी जी में एक क्वालिटी ये जो है वैसे ही है कि देखिए सुर तो साथ ही होते हैं कुर्बान भाई, अल्फ़ाबेट्स उतने ही हैं। उसी में कोई शेक्सपियर होता है, कोई कुछ होता है, कोई रविन्द्रनाथ टैगोर होता है, गुलसनंदा भी होते हैं, और तरह तरह के लोग होते हैं। बात कहने का एक जैसे होता है ना कि लहजे का करिश्मा है कि आवाज़ का जादू। प्रधानमंत्री मोदी ने उस दिन जो बात कही थी, उन्होंने कहा था कि 1920 में असहयोग आंदोलन होता
होता है और इतने सालों के बाद 22 सालों के बाद वो 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो में आता है, बदलता है। 22 साल लग गए असहयोग से अंग्रेजों भारत छोड़ो, और 22 और 42 से 47 विद इन 5 ईयर कि नहीं अब तुम्हें जाना पड़ेगा, और 5 साल में हमने वो अचीव कर लिया। बात उनका ये था कि एक लंबा दौर होता है ट्रांजिशन फेज में, पानी जैसे गर्म होता है 99 डिग्री तक आपको पानी ही दिखेगा, लेकिन अचानक वो 100 डिग्री पे भाप बन जाता है। तो क्वांटिटेटिव चेंज एक सर्टेन स्टेज पे जाकर के क्वालिटेटिव चेंज में बदल जाता है। तो वो आदमी जो बात कह रहा है उसमें एक इनकरेजमेंट है। हो सकता है कि आपको हासिल ना हो, लेकिन आप जानते हैं कि जिस दौर में हम हैं 60% जिस देश की पॉपुलेशन यंग हो, 35-40 साल की हो, वो अतीत और निराशा में नहीं जीती। उसके एम्बिशन इतनी है और उनको पता है कि अगर वो निराश हुई तो क्या होगा, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई पार्टी हो, यू हैव टू परफॉर्म। तो अब उसके लिए क्या है कि एक आशावादिता, जैसे मैंने ये शुरू में आपसे कहा था कि देखिए डाइवर्सिटी है हमारे यहाँ, उसका रिस्पेक्ट, नेशनलिज्म विद डिग्निटी एंड डेवलपमेंट। सो डाइवर्सिटी, डिग्निटी, डेवलपमेंट, ऑब्वियस डेमोक्रेसी। तो ये जो चीज़ें हैं कि आप इनको कहीं से छोड़ेंगे नहीं। राष्ट्रीयता भी ऐसी है कि एक डिग्निटी के साथ उसका आप सम्मान करते हुए चलें, डाइवर्सिटी का सम्मान हो, और डेवलपमेंट सबसे ऊपर है। तो वहाँ पे ले जा रहे हैं वो, और बड़े चालाकी से करते हैं। आज की जो आज की स्थिति है, कम से कम हम बहुत लागे का तो नहीं सोचते, लेकिन 19 में सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले उमर अब्दुल्ला ने यूपी के इलेक्शन के बाद कहा, उमर अब्दुल्ला बीजेपी में नहीं है। उसके बाद चिदम्बरम ने कुछ कहा। तो जो माहौल अभी तक बन रहा है वो कहीं ना कहीं से जो पड़ला अंकगणित है वो एनडीए के पक्ष में ही है। और जो मोदी उस बात को कह रहे हैं कि चूंकि हमने जो अचीव किया था, अभी तक वेंकैया नायडू उस टीम के सदस्य रहे हैं, इसलिए हमारे थॉट प्रोसेस को और उसके इम्प्लीमेंट करने वाले भी वो रहे हैं, और वाइस प्रेसिडेंट को भी ये सब सारी चीज़ें के प्रोसेस का थोड़ा सा वो है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हम चाहते हैं 5 इयर्स में, इसको एक जो भी कहें उसको समझने की प्रक्रिया, उसको मतलब क्या हम चाहते हैं, तो इसमें एक मदद मिलेगी। उसका मतलब ये नहीं कि कोई पक्षधर हो जाएंगे या कोई ऐसा रोल करेंगे, बट ऑब्वियस है इतना। वीके अग्निहोत्री साहब, अभी हम इस सप्ताह जबकि राष्ट्रपति चुने गए हैं, उपराष्ट्रपति चुने जा रहे हैं, अभी 15 अगस्त आने वाला है, क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो की बात हुई, अभी उसकी हम 75 साल एनिवर्सरी मना रहे हैं, आज़ादी की 70 साल पूरे होने के लिए जा रहे हैं। ऐसे में आप भारत को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं लोकतांत्रिक देशों की सूची में, और कितना हद तक हम लोकतंत्र को अंगीकार कर पाए हैं? जहाँ तक मेरा अनुभव रहा इस विषय में, क्योंकि मैं राज्यसभा का महासचिव था, तो उस समय मैंने तमाम कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करी जहाँ की देश के दूसरे देशों के भी संसदों के महासचिव आते थे और उनके अपने कार्यकलापों के बारे में चर्चा करते थे, और मैं भी सुनता था, मैं अपने बारे में बनाता था। और जैसा कि जनरली ये पूरे दुनिया भर में ऑलरेडी ये रियलाइज़ किया जा चुका है कि इंडिया इज़ अ वेरी गुड डेमोक्रेटिक कंट्री, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट एज़ कम्पेयर टू एनी अदर डेमोक्रेसीज़। जो हम लोग यहाँ देखते हैं हल्ला गुल्ला ये सब देखते हैं, इससे कहीं जापान में मैंने देखा है, इससे कहीं ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ में मैंने देखा है, मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ में देखा है, अमेरिका के बारे में भी आपने सुना होगा। तो ऐसी बात नहीं कि हमारे यहाँ कुछ फंडामेंटली देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद आवर थिंग्स। वी आर डूइंग वेरी वेल। ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और जहाँ तक कि आप ये बात कर रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेटिव की, तो उसमें जैसा आपको मालूम होगा जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, इनका ये एक यू कैन से ये देयर इज़ हिज फंडामेंटल्स फॉर गुड और हिज आई मीन फॉर गुड गवर्नेंस। ही हैज़ डिस्क्राइब्ड गुड गवर्नेंस एज रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। So transformation is also part of a process through which the Prime Minister wants this state country to move forward. उसमें अब
वाइस प्रेसिडेंट का क्या रोल होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आर ऑन द सेम वेव लेंथ, इफ़ दैट इज़ व्हाट ही मेंट, तो उससे जो अगर कोई नॉइज़ नहीं है सिस्टम में तो उससे राज्यसभा ज़्यादा अच्छी तरह से चलेगी, क्योंकि ये एक तरफा चीज़ नहीं होगी। इसमें जो मोदी जी कहेंगे उसको भी वाइस प्रेसिडेंट अहमियत देंगे, और जो वाइस प्रेसिडेंट कहेगा अपने अनुभव के बेसिस पर उसको फिर मोदी जी भी स्वीकार करेंगे। तो इस तरह राज्यसभा की कार्रवाई बेहतर होगी, ये मेरी आई थिंक दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। Absolutely. And, as far as, the kind of reactions that we get, when Parliament, of course, is in session, and when, of course, there's ruckus, when there's uproar, the kind of reactions that, the common man gives is that you're wasting taxpayers' money, discuss, let's talk about things in a better way. That's the kind of expectation that people have from parliamentarians. And if you look at how, the campaigning went of the presidentship, between Ramnath Kovind ji and, of course, Meera Kumar as well. It was a clean, simple campaign that went ahead from both sides, and that's something that was even seen. It wasn't, of course, a campaign this time around, but even for the vice presidential polls for the candidates, there was no back talking, there was no mudslinging, and that in itself is also a good indication that perhaps there's hope. There's hope. Our parliamentarians can do good, and not just in terms of these kind of elections, which are of course important, but also in terms of perhaps in the House, we can hope that things will go smoother perhaps in years to come, isn't it, Mr. Agnihotri? Definitely, very much so, because as I said, Mr. Venkaiah Naidu has loads of experience, and he has developed a sense of the House over a period of time. And therefore he will be in a better position to handle the situations which arise. And if he is on the same wavelength with the Prime Minister, then he will be sure to carry his way in whatever decisions he takes in the House, and there will be no aspersions cast on his decisions. Absolutely. Parsa sir, just talking about now we are of course looking ahead to the larger picture, which is of course the next Vice President of India. But we've got to also talk about the incumbent Vice President, Mr. Ansari. He's of course somebody who's also won the hearts of a lot of people from various parties as well. He came as of course a political unknown, and the kind of challenges Mr. Agnihotri himself said, he wasn't of course a parliamentarian, so the challenge of course was bigger for him when he stepped into those shoes of Vice President. How do you think he has fared, and what is the kind of legacy you think he leaves? I think he has been one of the finest vice presidents we have known. Again, he's a very cultured man with a mind of his own, and he could deal with all kinds of differences in the House and deal with them fairly, though he was under pressure, huge pressure. There were moments when it looked that he would not be able to handle them at all. But I think he handled them very well, and he came out and people began to trust him. There were times, I mean, let us not forget that he was under pressure from the opposition when the BJP was in the opposition. And he was under pressure from other parties when the women's reservation bill came, and there were some nasty moments. But he survived them all because I think he kept his humor alive, and he kept his cool. He did not allow himself to be carried away, and that is because he comes from a very, very cultured background, cultured middle class background, Indian Foreign Service, and with a wide amount of reading. He had a mind of his own, and he led what you call the life of the mind. He read extensively, took keen interest in many things. That is one thing I think he has set an example, that being a public person, you need to be an intellectual not in the derogative sense of the term, but taking interest in the arts, taking interest in ideas, Yes. taking interest in the developments of the world. I think it's one example all politicians, members of the Rajya Sabha as well as the Lok Sabha, can take a huge lesson from. Mr. Agnihotri, what do you think will be Mr. Ansari's legacy? See, because I have worked with him for 5 years, he has some very good qualities as an administrator and as a manager. And over his, I mean, he was not averse to taking strong decisions. There were
times when he did things which were unthinkable, but he did it in the interest of maintaining discipline in the house. He has named people who came to the well. It was not done very often in the past, but he made it a point always to name the people who came to the well and who disturbed the proceedings. And otherwise, he had a very good initial advantage, because that is an important point also to mention, that he did not belong to any political party, so nobody could blame him that he would favor this or that party. Only thing is, whenever he was taking strong decisions, when it was a strong decision against the treasury benches, they were unhappy. When he was taking a strong decision against certain things being done by the opposition, then the opposition was not happy. But that is the fate of a person who is sitting on a semi-judicial position. So he had a very strong position, and that is what probably in the heart of heart the opposition as well as the ruling party realized, that he is trying to follow the rules, and therefore he needs all the support, even though in the house they may differ with him or this thing, but always they were in support of his approach and the way he handled the matters. I just would like to add one sentence, that Mr. Ansari was very polite and very firm in his dealings with the members of the House across the party lines, and I think that was a huge positive. वीके निजली साहब, अब 5 बजने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, इस और पर मैं कुछ, अगर समय हो तो मैं जी कुछ जी अपनी जी बात प्लीज़ कहूं। कहें। देखिए, अंसारी साहब ने जिस दौर को देखा, मैं समझता हूँ उतना कठिन दौर अब जो 4-5 साल 6 साल का जो एक दिख रहा है, वो कठिन दौर नहीं आने वाला है। और इसके पहले भी वो दौर नहीं था, क्योंकि आप ये देखिए, हिंदुस्तान में 2014 के बाद एक जो बड़ा परिवर्तन हुआ कि एक हाउस में एक ऐसी पार्टी जो बड़े एग्रेशन के साथ, फुल मेजॉरिटी के साथ आई, लेकिन एक हाउस में जो है वो नहीं, और एक ऐसी पार्टी आई जो उसके नारे थे, उसमें कोई बहुत ब्रीदिंग स्पेस नहीं था कि आप रुकिए 5 साल, कोई बात नहीं है। ऐसे वो ऐसे नारे थे कि जो आपके महत्वाकांक्षाओं को, युवकों की बहुत बढ़ाते हैं, यानी आपको कुछ करना है। तो अब देखिए, वो ऐसा दौर था। राज्यसभा की जो स्थिति थी, अभी आपने पेपर पढ़ा होगा कि शायद टेक्निकली क्या, वाकई में बीजेपी अब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई राज्यसभा में भी। तो मैं ये कहता हूँ कि आप वो देखिए, चाहे वो लैंड बिल का मसला रहा हो, चाहे जो भी रहे हों, तमाम चीज़ों को एक ऐसे हाउस में वहाँ का एक एग्रेशन, दूसरे हाउस में स्थिति बिल्कुल उलट, और ये ऐसा दौर मैं समझता हूँ, कठिन दौर, जिस तरह से उन्होंने संभाला, यानी कुल मिला के बाढ़ में नौका चलाना, वो तो उतर गया, अब पानी उतर गया है, अब वो जा रहे हैं। वेंकैया जी के लिए बहुत एक उस तरह की स्थिति नहीं रहेगी, आप समझ लीजिए। तो मैं समझता हूँ कि जो सबसे मुश्किल पेपर था, वो उसमें एक अच्छा नंबर डिस्टिंक्शन के साथ अंसारी जी जा रहे हैं, और उतना कठिन पेपर अब शायद एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, और किसी को भी वो उस तरह की स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि समय और परिस्थिति भी देखना चाहिए कि वो एक ट्रांजिशन का दौर था, पूरा ये जो दौर रहा है, और उसमें संभालना, लेके चलना, मैं समझता हूँ कि उनकी जितना भी योगदान की सराहना की जाए कम है। वीके अग्निहोत्री साहब, आप चूँकि राज्यसभा के महासचिव रहे हैं, और जाहिर है कि आपको ये मौका भी मिला होगा कि ये जो चुनाव होता है इसको आप अंजाम दें। अब 5 बजने में कुछ ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है, वोटिंग का टाइम ख़त्म हो जाएगा और फिर उसके बाद मतगणना शुरू होगी। चूँकि ये बैलेट पेपर है और इसमें शायद टाइम लग सकता है, तो कब तक नतीजे की उम्मीद की जा सकती है? कितना टाइम लगता है मतगणना में? इसमें ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता, लेकिन अभी तो पहले वो आपको एक हमारे समझ में आके 5-10 मिनट में कुछ अनाउंसमेंट देंगे, कितना वोटिंग हुआ, क्या हुआ। और उसके अलावा तो जो भी बैलेट पेपर्स आए हैं उनको पता नहीं, शायद 1 या 2 बक्से इस्तेमाल किए गए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें जो वोट निकाले जाएंगे उनको छांटना है, छांट के जो उसमें अगर कोई इनवैलिड वोट है तो उस पर फिर जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर है वो भी निर्णय लेंगे, क्योंकि काउंटिंग टेबल पर तो जो लोग बैठे होंगे वो तो करेंगे, और फिर उनकी गणना की जाएगी, उनके बंडल बनाए जाएंगे, उनको लिखा जाएगा। मेरे समझ में 6:30 बजे तक ये रिज़ल्ट निकल जाना चाहिए।
तो प्रक्रिया क्या है, मतलब ये मतदान ख़त्म होने के बाद में ये जो आपने अभी प्रोसेस बताया है, इसमें घंटे भर का समय लग जाता है? प्रक्रिया ये है कि जो भी अब काउंटिंग के लिए टेबल बनाई जाएंगी वहाँ, क्योंकि अभी तो काउंटिंग के लिए टेबल नहीं है, अभी तो लोग बैठे हुए हैं अपने वोट बांटने के लिए और बॉक्स रखने के लिए। तो काउंटिंग टेबल को अरेंज करना पहले तो काउंटिंग टेबल अरेंज होगी, उस पर जो काउंटिंग का स्टाफ है वो आएगा, फिर वो बक्सा लाया जाएगा और वहाँ पर जो एजेंट या जो कैंडिडेट्स हैं उनके जो एजेंट्स हैं, एमपीज़ ही होंगे कोई, वो आके देखेंगे कि हाँ भाई सब में ताला वाला ठीक से लगा हुआ है, सब ठीक है। तो इस तरह की प्रक्रिया चलती है, तो थोड़ा तो टाइम इसमें लगता है, लेकिन जैसा मैंने कहा एक डेढ़ घंटे से ज़्यादा लगने का समय नहीं है। तो काउंटिंग में तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन बाकी जो प्रक्रियाएं हैं ये दिखाने के लिए कि जब सभी काम जो वोटिंग का हुआ है और जो हुआ है वो सब कानून के हिसाब से हुआ है और कोई इसमें गलती नहीं है, उसको देखने के लिए और उसका काउंटिंग के लिए अरेंजमेंट करने के लिए उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम उम्मीद करें कि 6:30-7 बजे तक नतीजा आ जाएगा। हाँ, आ जाना चाहिए, आ जाना। पारसा साहब, मैं बात कर रहा था अभी कुछ देर पहले कि हम लोग 70 साल के लोकतंत्र होने जा रहे हैं, आज़ादी के 70 साल हो रहे हैं, और इसमें हमने जिसको कहते हैं ना वेरियस शेड ऑफ लाइफ और आइडियोलॉजीज़ को देखा है। कांग्रेस पार्टी चूँकि राष्ट्रीय आंदोलन से निकली पार्टी थी, एक लंबे समय तक उसने शासन किया। उस पार्टी से निकले लोग संवैधानिक पदों पर रहे, चाहे वो राष्ट्रपति हों, उपराष्ट्रपति हों, लोकसभा अध्यक्ष हों या प्रधानमंत्री हों। लेकिन पिछले 25-30 सालों में जिस तरह की राजनीति हुई है उसमें दूसरी विचारधाराओं को भी मौका मिला है, दूसरे लोगों को भी मौका मिला है। तो कितना मैच्योर हुए हैं हम या इंडियन डेमोक्रेसी? मैं समझता हूँ मैच्योरिटी इस बात पे है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है जमहूरियत के ज़रिए हुआ है। अगर दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखा जाए, अगर कोई शिफ्ट होता है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट, तो वायलेंट रेवोल्यूशन के ज़रिए होता है। हमारे पास इलेक्शंस के ज़रिए स्मूथ ट्रांजिशन हुआ है। दो बड़े चीज़ हुए पिछले 25 साल में। एक जो है मैं नहीं मानता कि हम कभी सोशलिस्ट स्टेट रहे, लेकिन रेटरिक के तौर पर हम सोशलिस्ट स्टेट रहे, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, मार्केट इकोनॉमी एक बहुत बड़ा तब्दीली है। दूसरी बात यह है कि आइडियोलॉजिकल लेवल पे राइट विंग हो जाना, इसमें दो राय नहीं चाहिए। हम कहीं लोग राइट विंग पॉलिटिक्स के खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि शिफ्ट, ये आइडियोलॉजिकल शिफ्ट जो है हम सामने देख रहे हैं और वो लोग कामयाब हुए हैं। इसके कई वजूहात है, उसको एनालाइज भी कर सकते हैं। ये कहना ये सही है या गलत है वो अलग बात है, लेकिन ये 70 साल में अगर 1952 देखा जाए, 47 में जो माहौल था और आज जो माहौल है, कि बहुत बड़ा तब्दीली ये है कि हम एक लिबरल, एक क्या कहते हैं सोशलिस्ट लेवल से लेकर एक मार्केट ओरिएंटेड और एक थोड़ा बहुत नेशनलिस्ट, थोड़ा बहुत नैरो माइंडेड हो गए। लेकिन इसमें कोई फॉल्ट नहीं है कि नैरो माइंडेड भी हो सकते हैं, क्योंकि कई मुल्कों में, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, आज नैरो नेशनलिज्म का दौर रहा है कि हर कोई चाहता है। उसका कॉम्प्लिकेटेड रीजनिंग ये है कि जब इकोनॉमी ठीक से परफॉर्म नहीं करता है तो लोग एंग्जाइटी के बलबूते पर नैरो माइंडेड हो जाते हैं। मैं समझता हूँ हम उस दौर से गुजर रहे हैं कि जब हम लिबरल नहीं है और ब्रॉड माइंडेड नहीं है, थोड़ा बहुत नैरो माइंडेड हुए हैं, नेशनलिज्म के दौर से गुजर रहे। लेकिन ये भी एक पासिंग फेज़ है। ये कहना कि ये एपोकलिप्स आ गया है, ये दुनिया ख़त्म हो रहा है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। लेकिन ये मानना बहुत ज़रूरी है कि आइडियोलॉजिकल शिफ्ट हम देख रहे हैं और इसको जांचना चाहिए, इसको सामना करना चाहिए। जी, रामकृपाल जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है जो इन्होंने कहा। मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना ही चाह रहा हूँ, या उसको कुर्बान भाई अगर देखिए तो 70s का याद कीजिए आप, दो ही बहस होती थी 70s में, इक्वलिटी एट द कास्ट ऑफ लिबर्टी और लिबर्टी एट द कास्ट ऑफ इक्वलिटी। यानी सिंपल है, या तो आप दो खेमे थे, या तो आप उस खेमे की तरफ आप मान लीजिए, यानी सोशलिज्म या फ्री एंटरप्राइजेस फोरम, दो ही तरह की थी। 70s के बाद धीरे धीरे जब ये, बल्कि आप यूँ कह लीजिए 90s के आसपास का, 80s में
जब ग्लोबल दरवाजे खुलने लगे, हिंदुस्तान के भी खुले, बहुत बाद में तो क्यूबा ने भी खोल दिए जो बिल्कुल लैंड लॉक्ड एकदम था। तो ये हो गया कि देखिए, जो विचार ने पहले एकदम बाजार को बिल्कुल ऐसा कर दिया था जैसे बाजार कोई गाली हो, बाजार आके खड़ा हो गया विचार के सामने और उसने कहा कि देखो हमें बराबर की स्पेस दो और नहीं तो तुमको धक्का मार के किनारे खड़े कर देंगे। मार्केट इकोनॉमी उसी तरह से उसने विचारों को चैलेंज किया। याद कीजिए, धीरे 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 एक्सेप्ट किया गया कि अब वो चीज़ें, ये डिवीजन जो है कि जैसा आप कह रहे थे ना कि सशस्त्र वो क्रांति या ओवरथ्रो करके हम कभी कर लेंगे, हुआ कि उसके नहीं है। आप डेमोक्रेटिक तरीके से ही पूरी दुनिया में बदलाव होगा और मार्केट के रोल को भी आप एक्सेप्ट कीजिए। सबको पता चल गया कि इसलिए धीरे 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 चाइना और बताइए आज अमेरिका की इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या फ़र्क है। तो जो सबसे बड़ी दीवार थी रसिया में और वहाँ क्या फ़र्क है, सिवाय के टेरिटोरियल आप अपनी रक्षा करने के लिए अगर कहीं भी देख लें कुल मिला करके तो बहुत कोई मेजर फ़र्क नहीं है। तो जैसा आप कह रहे थे सही हुआ। फिर उसके नाते क्या हुआ कि जब बाजार और विचार जब लेफ्ट राइट का ख़त्म हुआ तो एक स्वाभाविक रूप से था कि स्थानीय पहचान, एक आइडेंटिटी का शुरू हुआ। वो चाहे अमेरिका में हो चाहे जहाँ भी हो, फ्रांस में नहीं हुआ लेकिन बाकी जगहों पर देखिए कि उसका उभार हुआ कि नेशनलिज्म को डिग्निटी से, जो कभी माओ से तुंग ने किया था चाइना में चियांग काई शेक के खिलाफ कि एन आइडियोलॉजी मस्ट बी नेशनलाइज्ड, ये तब की बात है, कोई नई बात नहीं थी। तो एक धीरे धीरे वो क्या हुआ कि एक ऐसा दौर आया कि जैसे हम पहचान भी खो रहे हैं और ये सब जो जुमले थे कोई कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और बाजार ने, रिफॉर्म ने क्या किया कि इतनी तेजी से इकोनॉमिज्म आ गया कि लोग भागे उसकी तरफ। ये सच्चाई है। जैसा आपने कहा कि ये दौर बहुत दिन चलता है, नहीं चलता है, नोबडी नोज। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि एक मिला जुला है, लोकतांत्रिक तरीके से समाज में परिवर्तन हो, आर्थिक विकास भी लोकतांत्रिक तरीके से हो सकता है। इस बात को हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि हम चाइना से ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। जो माना जाता था कि टोटलिटेरियन स्टेट में जो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेज़ी से होती है, आज चाइना से ज़्यादा हिंदुस्तान हो गया। जबकि हिंदुस्तान में तमाम तरह के, जिसे कहा जाता है कि सारी चीज़ों को, डिस्पाइट वी आर ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7% प्लस, नो इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इज डूइंग दैट। तो जो समझ सकता है, चाहे वो यूपीआई एनडीआई, कहीं ना कहीं आपको ये ग्रोथ अचीव करनी है। अगर हिंदुस्तान एक लोकतंत्र ताकतवर होकर के दुनिया को दिशा देने की अगर वो उसमें क्षमता है तो आपको इसी तरीके से 7% ग्रोथ को बरकरार रखना है और उसमें कोई ज़्यादा गुंजाइश नहीं है। तो ये जो डिफरेंसेस था ना, जिसको पार्टियां बहुत दिखाती हैं, जनता समझ गई है, अरे यार कुछ नहीं है। आइडियोलॉजिकल जो सोकाल करते हैं, कई बार वो नारेबाजी होती है दोनों पक्षों की, वो समझते हैं या नकली है, सिर्फ वोट के लिए है। असल में बात ये है। तो ये जो सबसे बड़ी बात होती है जिस पे हम लोग कहते हैं कि कुल मिलाकर के अब देखिए 2017 की चुनौतियां बिल्कुल डिफरेंट हैं। जब ये सदी पूरी हुई थी तो मुझे याद है कि टाइम मैगजीन ने जो अपना विशेषांक निकाला था उसमें 2 शब्द निकाले थे कि एक पूरी सेंचुरी की देन क्या है। तो ग्रीड एंड डेमोक्रेसी, मैं उसको हिंदी में कहता हूँ लालच और लोकतंत्र। एंटरप्रेन्योरशिप का एक हुआ, चाइना ने भी देखा कि जब तक हम एंटरप्रेन्योरशिप को नहीं बढ़ावा देंगे कि ये सामूहिक स्वामित्व जो है हर जगह कम्युन फेल हो चुके, तो चाइना ने इंडिविजुअल ओनरशिप शुरू कर दी कि लीजिए कीजिए, कैपिटलिज्म को एक सीमित बढ़ावा देना शुरू किया। तो मेरा यही कहना है कि आज की तारीख में हमारे यहाँ भी सोशियो इकोनॉमिक डिफरेंसेस उस तरह के नहीं है जो कभी 70s में हुआ करते थे या झुंझुना हम लोग लेकर के इसे चला करते थे। ये बात यूपीए भी जानती है, एनडीए भी जानती है, लेफ्ट भी जानता है। आज बंगाल में चाहे वो सीपीएम की सरकार रही हो, ममता जी की सरकार हो, आज चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग एफआईआई आकर के पूंजी लगाएं। तो ऐसे में क्या है कि जो पार्टी, जैसा आपने कहा कि एक शिफ्ट ये हुई कि हमें थोड़ा सा अपनी डिग्निटी और राष्ट्रीय अस्मिता के साथ खड़े होकर के विकास करना है और हम करेंगे। ये सपना जो भी लोगों को दिखा ले जाए, वो चाहे जो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो है। आज जैसा बिल्कुल सही कह रहे थे कि थोड़ा सा ये जो राइट विंग जिसको कहा गया, लेकिन मैं फिर आज कह दूं, जनसंघ का नारा था, हम बचपन में बहुत छोटे थे, सन 62-63 में, हर हाथ को काम हर खेत को पानी, ये जनसंघ का नारा था।
आप इसको सीपीएम का नारा कह सकते हैं, मोदी राज का नारा कह सकते हैं। अगर यही एक चीज को कोई सच कर ले जाए तो मैं समझता हूँ क्रांतिकारिता है। All right. Mr. Agnihotri, you know, the top 4 constitutional posts, it has been said as well, the BJP, of course, for the first time is going to be holding it. For the party, how significant is it? That we understand. But for a democracy, how does it augur for a democracy that the top 4 the constitutional posts are, you know, ruled, or for that matter, taken by a majority party, one single majority party? How does that augur for a democracy? The point that was being made was that it is first time that the opposition is getting this. The point was not that nobody, I mean, no ruling That has party- not happened before. But when it does happen, when that talmeil happens, you know, when that it eventually comes to that, how does it augur for a democracy? Do you think things work faster? Or do you think, you know, you get more pressure from the opposition? How does it work? See, there are two factors here. One is that this kind of combination has been there in the beginning, from the beginning of our democracy till a certain period of time, till maybe 70s or whatever. So it was it is nothing new, but situation is changing. People's expectations are changing. The way the democracy is being played out, the manner in which it is being conducted is also changing. So one cannot take many lessons from what happened in the past and say that this is what is going to happen in the future. In the past, this talmeil may have worked very well, but whether that talmeil will work in future is something to be seen, and whether it will work or not will largely depend on whether the people elected to these positions play their role as per the rule book, as the constitution expects them to do. That is the whole crux of the matter. All right. Well, I think we've established, you know, the importance, of course, of the vice presidentship, and we've established the fact that Mr. Venkaiah Naidu is going to be the next vice president of India. The results, of course, not out yet. In just a few minutes, of course, we are going to get an update, perhaps, from Parliament that the voting, of course, would be over. At 5 o'clock is when it does get done. And then after that, of course, like Mr. Agnihotri explained, the counting would begin. It's a process that may take an hour and a half. And by 6:30 or so is when we will get that final name. And in surety, in fact, it is going to be Mr. M. Venkaiah Naidu. I thank all our guests for joining us here and taking us through really the importance of the challenges that are ahead for the Vice President, and also the legacy that Mr. Ansari leaves, the incumbent Vice President. We'll continue the discussion, of course, but at the moment, me and Kurban Ali will say goodbye for the moment. We'll take a quick break, and the coverage will continue. Stay with us.